Thanks for registering and taking charge of your health and wellness. Your health is only in your hands. Um, so we have with us Garima and Madhuri from the Swasth Foundation. Before we really get into what they do and what their profiles are, we will just be taking you through some features of Zoom that might help all of us to have this webinar very smoothly and effectively. Okay, so we'll just start. So for people who are watching this through the desktop, if you can look at the share screening, just pay attention to some of the features that you might be operating for the next 1.5 hours. So just look at the bottom of your screen. You will see there are options for muting and unmuting yourself at the left side bottom. This will be on mute for all the participants when the session is on, but you can unmute yourself at any given point of time when you have a query at the end. Next to that is the start and stop video option. This can be on for most of y'all who has good internet bandwidth. Moving forward, there's an option named chat. If you have any question and are unable to speak at any point in time, you can use the chat option for any of the query or concern that you're facing. Moving on, there's an option of reaction. The meeting host will at any point in time ask for a thumbs up or raise hand option. You can use the reactions for using the thumbs up. Moving on towards the right hand side bottom of the screen, you can see a raise hand option. This can be used when you have questions at the end of the seminar. So the host can actually see your hand raised and call out your name, and you can ask your question then and there. The next slide is about using Zoom app on a mobile phone. Most of us are using mobile for the Zoom calling. So it's very similar to how the desktop version works. We have a mute and unmute option at the bottom left of the screen. You can keep it mute at all times. Only at the end when you have questions, you can unmute yourself and speak out the question. Then there is a start and stop video option. Same thing, please keep your video on for most of the time unless you have a bad internet bandwidth. There is an option, if you go towards your right bottom, there are 3 dots that are visible. Once you press on that, there is an option that you get of raise hand. Again, at the end, when you have any questions or concerns, you can raise your hand and the host can call out your name, and then you can unmute and ask your question there. So these are the basic features that you will be using during our session today. There is also an option of renaming yourself. So I see a lot of y'all are using names like Redmi, iPhone. So if you can, please rename yourself. Yeah. Moving on. Does anyone have any question on Zoom? Anyone facing any trouble? Please put it in the chat box and we can respond to you. Okay. Coming to the main part of today's webinar, we have with us Garima and Madhuri from Swasth Foundation. We are so thankful that they have agreed to do this. I'm just going to mute everybody here. Okay. So coming back to our main agenda of the day, we have with us Garima and Madhuri from Swasth Foundation. We are so happy that they have agreed to do this wonderful webinar with us. There was a survey link sent to all of you all to capture your inputs, your questions, your thoughts about what is going on right now in the world. That's COVID, and there are a lot of concerns, a lot of questions in our minds that are still not resolved. So we have 2 experts from Swasth Foundation who are going to take us through the entire health and wellness concept around the COVID concept and beyond that as well. How do we really build our immunity? How do we take care of our physical and mental well-being? So Garima is the COO at Swasth Foundation. She is a graduate from IIT 2005 batch. After IIT, she went on to becoming a management consultant at McKinsey. Then she moved on to the development sector, joined TFI. She was a part of the core startup team for Mumbai operations.
Then finally in 2012, she joined Swasth Foundation, where she headed multiple verticals. Yeah, and then moving on to becoming COO in 2015. She also holds a PG diploma in yoga therapy and also has a yoga instructor's course done with Swasthya, which is the only yoga institute in India. Um, she's also an associate certified coach from the International Coaching Federation. So it's a wonderful profile, and I'm really excited to hear wonderful things from her. Accompanied is Madhuri Mistry. Uh, Madhuri is a core management committee member and head for Anandalay, which is a wellness center for Swasth Foundation. She joined Swasth in 2014. Since then, she has played multiple roles, including clinical coordinator, trainer, regional head, head of shared services, and ultimately now she's the head of Anandalay. Uh, she is a trained pathology lab technician, having cleared the DMLT, that is Diploma in Medical Lab Technology, and is also a certified yoga instructor. Currently, she's pursuing BSc in chemistry, BSc in yoga, and professional coach certification also. So these are two wonderful people with us with great credentials. So yeah, looking forward to a great session. Garima, over to you. Thank you, Dimple. I think it's a pleasure for us to be here. And like Dimple said, I think your coming here, attending this session really shows your commitment to not just your well-being, but also your family and your larger community's well-being. I was reading after Google Forms major responses, and it's very, very clear that there is a lot of concern for, how can I keep my community also safe? So let's see, we'll do our best to address your questions. So let me maybe just start with a little bit of introduction. Dimple has, I think, introduced us very, very well. We could have done that better. So maybe let me talk a little bit about Swasth and what Swasth does, so that आपको ये भी समझ आए what is the larger context in which we are doing this work. So Swasth Foundation actually एक 11-year-old organization है जो health and wellness के field में काम कर रही है, and it's both health and wellness. So Bombay के अंदर we have 19 clinics जो आज तक 10 lakh patients से ऊपर को actually service दे चुके हैं, and we try to provide services at a rate जो market से बहुत कम है, significantly कम है. तो actually 15 crore rupees की savings patients को deliver हो चुकी हैं, and service quality का भी हम लोग I think बहुत importance रखते हैं. ये सब काम है जो Swasth काफी सालों से before the lockdown करते हुआ रहा है. I just want to take a minute to also share what we have been doing in the last 1 month, and that may also help you to also know what are areas where Swasth can support you. So 4 things: medical services. Our clinics have been all operating as normal. In fact, there have been innovations like teleconsults. So not just anyone in Bombay, but anyone in India can call us, and हमारे doctors जो हैं वो phone पे available हैं. So teleconsultations are available. We have been distributing food in communities, doing a lot of community education, whether online है, phone calls के through है, actual workshops conduct करके है, so that लोगों को actually COVID के बारे में correct information मिले, because there is also a lot of incorrect information that is out there. And additionally, we have not just for our own staff, but for all other relief workers, for all like BMC doctors, we have been donating the PPEs also for their protection and their safety. So, given the background that we have in health, we have been attempting to not just अपनी services कैसे चालू रखें, but how do we enable other NGOs to do this work and enable the government also to do this work more effectively. So let me come straight to I think just the agenda for today. Based on again जो आप सबने responses भेजे थे, you can see we have divided the session broadly into 3 parts. One is what we call the ABC of COVID-19. So just the basics that we all should understand, not just for ourselves again, but for our communities. The second question जो काफी आया है is what do I do if I need medical care at any point of time? Or my family members need. So a little bit about who is really at risk of COVID and what care do they need to take. And the third, we hope to spend a lot more time on that. That is clearly being the number one question on people's minds, that how do I build my immunity?
right? There are certain precautions that I can take, but अपनी immunity को कैसे build करें? So the way, let me just share a few guidelines हम कैसे सोच रहे हैं around doing the session today. So these 3 sections you've got. What we will do is in each of these 3 sections, we don't have a lot of time. This can be multiple sessions. इतना सारा content है cover करने के लिए. So we will cover a little bit, and we will try to, already आपके जो questions आए हैं उसके basis पे we will share certain information, and then we will have a question and answer within each session. So there will be 20 minutes made, like 10 minutes of us sharing, 10 minutes of question answers. Then we will move to the next section. And yes, it is possible we may not be able to answer all your questions immediately, but we will park them. And if you have any questions later on also, we will work with Dimple, Ruchika to figure out how can we address them later on. And I think abhi tak introduction tak zyada English mein rakha hai. I will, me and Madhuri going forward will keep most of this discussion in Hindi, including many of the slides, and the purpose is that if any of your family members who are with you right now, if they would like to join, this is again a wonderful opportunity for them to get this information also. So मैं अब ज़्यादा conversation हिंदी में रखूंगी. I think that is generally everyone's comfort language also. And finally, ये recording जो है ये भी हम सबके साथ share करेंगे, और इसके बाद भी ये webinar के बाद भी आपको कई सारे resources we will coordinate और आपके साथ share करेंगे. So with that, I will hand it over to Madhuri, first section के लिए, which is the ABC of COVID-19. Yes, thank you Garima, and thank you Dimple. अच्छा लग रहा है सबके साथ बात करने के लिए. अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतने इंटरेस्टेड हो अपने वेलबींग और हेल्थ के बारे में. सो आपके जब आंसर्स पढ़ रहे थे तब काफी सारे चीजें जो थी या काफी सारे आंसर जो आपको चाहिए थे वो इस पे बेस्ड थे कि क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, हम कैसे अपनी केयर करें और अपने फैमिली की केयर करें ताकि हम सुरक्षित रहें. तो इसलिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 बीमारी जो है वो फैलती कैसे है. वो अगर हमें क्लियर है तो ऑटोमेटिकली हम जान जाते हैं कि जो केयर करनी है वो क्या करनी होगी. तो इसके मेन 2 तरीके हैं जिस तरीके से ये फैलता है कोरोना वायरस की जो बीमारी है. एक तरीका है कि थ्रू ड्रॉपलेट्स. सो जिसको कोरोना की बीमारी हुई है उसके मुंह के अंदर, नाक के अंदर जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर बात करते समय, खांसते समय या छींकते समय अगर दूसरे के अंदर चले जाते हैं तो वो फैलता है. और दूसरी और एक चीज है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की थ्रू फैलता है. तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ हो सकता है? एक तो मुंह में हो सकता है, नाक में हो सकता है, आंख में हो सकता है. तो अगर कहीं पे ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये जो वायरसेस हैं ये अगर किसी सरफेस पे लगे हुए हैं, किसी चीज पे गिरे हुए हैं और उसको अगर हम टच करके अगर अपने चेहरे के किसी भी पार्ट पे जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है ऐसे चीजों को अगर टच करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को टच करते हैं तो वो अपने अंदर जाते हैं. तो ये 2 तरीके हैं कोरोना वायरस ट्रांसमिट होने के. तो अब इससे अपने आप समझ आएगा कि हमें क्या केयर लेनी चाहिए. तो जैसे अगर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से अगर फैलता है तो ऑटोमेटिकली जो केयर करनी है वो है, मतलब सबको क्लियर ही होगा, वो मास्क पहनना. तो अभी ऐसा है कि हम कोई भी लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कई लोग घर में हैं. तो अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो जहाँ पे लोग हैं ज्यादा, वहां पे आपको मास्क पहनना जरूरी है. अभी सबको N95 मास्क, N99 मास्क मिलना पॉसिबल नहीं है. जिसको मिलता है वो अच्छी बात है अगर मिल रहा है, बट अगर नहीं मिल रहा तो आप घर पे बना हुआ मास्क भी यूज कर सकते हैं. याद रखें कि उससे आपको 70% इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है जो ट्रांसमिशन होती है कोरोना वायरस की उससे. ये एक चीज है मास्क. दूसरी चीज जो हम वो तो ड्रॉपलेट से बचाएगी. अगर ड्रॉपलेट से या एरोसोल से अगर आपके पास वायरस आ रहा है उससे बचाएगा. अगर आप हाथ कहीं पे लगा रहे हो
या हाथ अपने चेहरे को कहीं लगा रहे हो तो एक डर है अंदर जाने का। तो याद रखिए कि अपने हाथ को सोप एंड वाटर से वॉश करें। अगर वो अवेलेबल नहीं है सोप एंड वाटर तो सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर से भी कई ज्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देता है आपको साबुन और पानी। तो जहाँ पे भी आपको पॉसिबल है ज्यादा से ज्यादा अपने हैंड्स को वॉश करना जरूरी है। अगर हम बाहर काम करने जा रहे, हो सकता है कि हमारे फैमिली में से कोई बाहर जाके काम कर रहा हो या हम खुद बाहर जाके काम कर रहे हो, याद रखें कि अपने चेहरे को कहीं पे भी टच ना करें खराब हाथों से। जहाँ पे भी अगर हम लग रहा है कहीं पे हम हाथ लगा रहे, अपने चेहरे को कहीं पे टच ना करें, तो उससे काफी प्रोटेक्शन हमारी हो जाती है। और एक इससे फिर अलग अलग तरीके के सवाल हमारे मन में आते हैं कि ये जो वायरस है ये कौन सी जगह पे कितना टाइम रुकता है, ताकि हम उसको टच करते समय पे ध्यान दें कि इस पे 4 घंटे होता है तो ऐसे ऐसे कई सवाल आते हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वायरस किसी भी सरफेस पे हो, कितना भी टाइम उसका लाइफ टाइम है, वो कितना भी टाइम रहे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी और हमारे परिवार की केयर कैसे कर रहे हैं। तो अगर ये एज्यूम करके ही चलो कि हाँ सब जगह पे वायरस होने वाला है और सब जगह पे हमेशा जिंदा होने वाला है, तो हम अपने आप अपनी केयर करेंगे। और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा हैंड वॉश करना, हमेशा मास्क पहनना, वो जरूरी है। ये कैसे फैलता है, तो इसका हमने तरीके जो देखे वो पूरे दोनों तरीके कैसे हैं कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन उसका कैसे फैलता है वो देखा हमने। बाकी कोई तरीका नहीं है, किसी एनिमल से नहीं फैलता, किसी मॉस्किटो के काटने से नहीं फैलता, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही इसका प्रसार होने वाला है। तो और ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक आदमी, एक पर्सन कई सारे लोगों को, मतलब अनगिनत लोगों को वो कोरोना वायरस दे सकता है। तो जैसे आई डोंट नो कितने लोगों ने वो पेशेंट 31 की स्टोरी पढ़ी है या वीडियो वो देखा है कोरिया के पेशेंट की, कि वो एक जो पेशेंट थी उसका वो 31st पेशेंट थी और उसे नहीं पता था और वो चर्च में इतने सारे लोगों से मिली थी और काफी लोगों को उसके बाद कोरोना वायरस हुआ था। कितने सारे हजार लोगों को उसके एक पर्सन की वजह से कोरोना कोविड-19 बीमारी हुई थी। तो ये याद रखना जरूरी है कि आप एक पर्सन मतलब लिटरली पूरी दुनिया को दे सकता है। मतलब ऐसे ही हुआ, मतलब वुहान से जो स्टार्ट हुआ वो किसी एक पर्सन को ही हुआ होगा और उसके बाद पूरी दुनिया में वो फैल रहा है और ये इसी माध्यम से फैल रहा है। एक चीज जो मास्क के लिए ध्यान देना जरूरी है, अगर आप क्लॉथ मास्क पहन रहे हो तो आपको उसको अच्छे से वॉश करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन में अगर पूरा दिन एक मास्क यूज कर रहे हो, दूसरे दिन आप उसको बिना वॉश करके ना पहने, ये रिकमेंडेशन है। और एक चीज जो ध्यान देनी जरूरी है कि अगर बाहर से घर में आ रहे हो तो आप तुरंत क्या एक्शन ले रहे हो। तो सबसे जरूरी है कि आप बाहर से घर में आने के बाद आपके जो दिन भर के कपड़े हैं वो तुरंत वॉशरूम में जाके उसे वॉश करने डालिए, फिर आराम से उसको वॉश कर सकते हैं, बट तुरंत वो अपने से अलग करना बहुत जरूरी चीज है। ओके, और अगर आप यस पूरी तरीके से सैनिटाइज करना, एक होता है कि कपड़े और दूसरा चीज होता है कि पूरी अपनी बॉडी को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। क्योंकि जैसे हम आगे भी बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में या और चीजों के बारे में भी बात करेंगे कि क्या मेडिकल केयर हम लेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि हम हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये हमें नहीं होगा, बट हम ट्रांसमिटर बन सकते हैं। तो हमारे घर में लोग हैं तो उन्हें हो सकता है, तो उनका केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अगर बाहर से हम आ रहे हैं तो अपने घर वालों के लिए अपनी पूरी केयर करना जरूरी है। ओके, तो एक सवाल ये भी था कि
मेरे आसपास में अगर लोग हैं जिनको कोरोना वायरस है, पॉजिटिव पेशेंट्स अगर हैं, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? तो अपनी जिम्मेदारी यही है कि सारे प्रिकॉशंस या जो भी मेजर्स आपको बोले गए हैं, जो गवर्नमेंट बोल रही है, यहाँ पे हम बाद में रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, तो अलग अलग जगह से इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है और कई जगह से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन में दिए गए प्रिकॉशंस अच्छे से फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना और हमेशा ये समझना कि हाँ, हमारे आसपास में पॉजिटिव पेशेंट होने वाले हैं, वायरस होने वाला है, ये समझ के प्रिकॉशन लेना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इतने दिन से लॉकडाउन है, मतलब 23 मार्च से हम लॉकडाउन में है। दो द लॉकडाउन इज नॉट द राइट वर्ड, एक्चुअली अच्छी चीज है सरकार ने करी हुई कि लॉकडाउन में अभी जैसे 2 दिन से आप देख रहे हो कि लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ और फिर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो इतने दिन से हमने फॉलो की, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज करने के बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग लोग अभी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्चुअली एक एग्जाम्पल है जो 100 साल पहले एक स्पैनिश फ्लू करके एक बीमारी हुई थी, वो भी एक पैंडेमिक ही था। दो उस समय पे इतने सारे कम्युनिकेशन के, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, फिर भी वो काफी लोगों हुआ था, 500 मिलियन लोगों को हुआ था और उसमें से 50 मिलियन डेथ हुई थी। तो उस समय का एक कर्व का एक पिक्चर है जो मैं शेयर करना, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये पढ़ भी सकते हैं आपको, कर्व दिख रहा होगा। तो ये कर्व आपको यही दिखाता है कि शुरू में पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ तब से क्या सिचुएशन थी। तो ये एक्चुअली 2 साल चला और 2 साल में आप देख रहे हो ऐसे 3 वेव्स आए। तो 3 वेव्स में शुरू में जितना लोगों के डेथ का जो अमाउंट था, वो जब लोगों ने थोड़ा सा रिलीज कर दिया कि जैसे लोगों ने प्रिकॉशंस लेना छोड़ दिया, तो देखो कितना बढ़ गया, वो लोगों के डेथ का जो अमाउंट था वो इतना बढ़ गया। फिर जैसे ही वो नीचे आने लगा, जैसे ही हमने थोड़ा स्ट्रिक्ट करा हुआ तो वापस वो नीचे आया, फिर थोड़ा सा रिलीज किया, फिर एक्चुअली ऊपर गया। तो अगर हमें ये रोकना है अब ये कोरोना की सिचुएशन में, ये अगर हिस्ट्री वाला जो लेसन है हम अगर लेते हैं तो हम इस चेन को जो फैल रहा है पूरी दुनिया में उसको ब्रेक कर सकते हैं। इस कर्व को रियली फ्लैटन करना सिर्फ हमारे हाथ में ही है और हमारे हाथ में है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसे ब्रेक करें, उस चेन को ब्रेक करें। ओके, तो इतनी सारी चीजें हैं और इतनी सारी चीजें अलग अलग जगह से हमें सुनने मिलती है, हम पढ़ते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद कई सारे और सवाल भी आते हैं मन में। तो अभी एक्चुअली हमारे पास है 10 मिनट, तो अगर कोई भी अगर आपको सवाल आता है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। सवाल पूछने से पहले आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करके बोल दीजिए, नहीं तो आप चैट बॉक्स ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं अपना क्वेश्चन टाइप करने के लिए। तो मेरा एक सवाल है डिम्पल। हाँ, तो जब हम बाजार में जाते हैं और जब हम कुछ लाते हैं, सब्जियां लाते हैं या कुछ फ्रूट है, सो वी नो हाउ टू सैनिटाइज आवरसेल्फ बाय वॉशिंग एंड टेकिंग अ बाथ, लेकिन उसको हम कैसे क्लीन अप करें ताकि वायरस उसके थ्रू ना आए हमारे घर में या वो अफेक्ट ना हो। सो हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस फ्रॉम दैट? अच्छा, थैंक यू राहुल। एक्चुअली ये सवाल कई सारे लोगों के मन में होता है और हमेशा आता है ये सवाल।
तो एक्चुअली हम खुद को साबुन से नहाएंगे या खुद सैनिटाइज करेंगे, कपड़े बाहर रख देंगे। लेकिन अगर सब्जी और फ्रूट्स आप ला रहे हो तो सबसे पहले उसको पानी में डाल के अच्छे से धोना, और हो सकता है तो गर्म पानी में कुछ देर रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और इस समय पे रॉ थोड़ा अवॉइड करें खाना, और वेजिटेबल्स को अच्छे से पका के ही खाना इम्पोर्टेंट है। और एक सजेशन, मतलब ऐसे ही बात करते करते आया था कि अगर आप नमक और हल्दी के पानी में किसी भी सब्जी को रखते हो तो वो काफी उसका सैनिटाइजेशन हो जाता है। एज हल्दी का आपको पता है सबसे बड़ी क्वालिटी होती है डिसइंफेक्शन वाली, तो वो नमक और हल्दी के पानी में रखना सब्जी वेजिटेबल को सबसे बेस्ट तरीका है। एक इसके बारे में एक मिथ भी आया था कि क्या धूप में रखने से कोरोना वायरस मरेगा क्या, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, ऐसे काफी सुनने को आ रहा था। तो इसका एक्चुअली बहुत मुश्किल है धूप से कोरोना वायरस मरना, क्योंकि कोरोना वायरस के मरने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है 52 डिग्री सेंटीग्रेड, और 52 डिग्री सेंटीग्रेड अगर धूप होगी तो हमारा क्या होगा सोचो। तो उतनी धूप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो एक मतलब वो तरीका, मतलब इट्स अ मिथ। और कुछ गरिमा आपको लग रहा है इसमें फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए? आई थिंक एक और चीज हम लोग की एक्चुअली आज ही एज अ टीम भी डिस्कशन हो रही थी कि अभी तक हम लोग काफी ऑपरेट कर रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा। बट जैसे माधुरी ने बोला, दिस इज ऑल्सो समथिंग जब हम ये अब नई रियलिटी जिसको बोल रहे थे न्यू नॉर्मल सॉर्ट ऑफ होने वाला है, बिकॉज कोई भी मेडिसिन कोई भी वैक्सीन डेवलप होने के लिए काफी टाइम लगता है। इनफैक्ट आज ही इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट आई है that we have to learn to live with coronavirus, क्योंकि हम इसको कंटेन तो करेंगे बट ये इमीडिएटली जाने नहीं वाला है। तो ऑल्सो ये सब प्रिकॉशंस हैं। आई वुड अर्ज एवरीवन टू थिंक कि नॉट जस्ट अभी हम लोग 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में क्या करें, बट इसमें से कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपने जीवन का एक तरीका हाई का काय प्रश्न बनानी है। कोरोना वायरस रिलेटेड? ओके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक एबीसी ऑफ कोरोना तो हम इतना टीवी पे देख चुके हैं, इतना सुन चुके हैं दैट वी वुड बी कंफर्टेबल विद दैट। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। यस, एंड पोल ट्राई करें उसके लिए? यस, पोल ट्राई करें। ओके, सो एक्चुअली जस्ट आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस का एक पोल आने वाला है, जस्ट टू गेट अ सेंस। तो आप आपके फोन स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पोल को अभी लॉन्च किया है। डिम्पल, आई एम जस्ट चेकिंग इन, आया है क्या? द पोल इज रिफ्लेक्टेड? यस, यस, रिफ्लेक्टेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 में से कितने लोग जिनको कोविड-19 हुआ है खुद या मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, एंड किनको हाई रिस्क है? एंड सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइसेस आर पॉसिबल। I can see 4 people have voted.
काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है. Twelve people, 13 people have voted. Yeah. शेयर भी होता है दोनों को. Okay. मैं last 5 seconds के लिए खुला छोड़ रही हूँ poll को, and then we'll see the results. And here we go. So 26 लोगों ने वोट किया है, and I think आप सबको okay, let me share the results. आप सबको देखेंगे results. So Madhuri. Yes. Yeah. Okay. So उस पे जाने से पहले एक सवाल अभी आया है किसी से कि कितने बार होना चाहिए, is there any precise number? So actually आपको जब भी लगे कि आपने किसी चीज को छू लिया बाहर की, तो तब आप वॉश करो. तो कितनी बार भी हो सकता है दिन में. Yeah. इसका एक सर्वे हुआ था, उससे one number that had come कि लोग कितनी बार, we don't even realize, हम दिन में अपने फेस को 23 times टच करते हैं. And so much of it is like subconscious, unconscious, हमें पता भी नहीं होता. So it's just, yeah, make your soap your best friend. Every 15-20 minutes. Is that enough? किसका सवाल था? Okay, I think आगे चलते हैं. तो हमने जैसे पोल में भी सवाल था कि कितने लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं. तो जो सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा था कि 60% लोग ठीक हो जाते हैं. तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है. तो एक्चुअली इसके पहले देखते हैं कि जो मॉर्टेलिटी रेट है कोविड-19 का, वो है 3.3%. तो अगर 100 लोगों को कोविड-19 बीमारी हुई है, तो उसमें से 97% लोग या अपने आप ठीक हो जाएंगे या मेडिकेशन के साथ ठीक हो जाएंगे. तो एक्चुअली अगर ऐसे यहाँ पे अगर आप स्लाइड देख पा रहे हो, 100 लोगों को अगर कोविड-19 बीमारी हुई है, तो 80% लोग उसमें से सेल्फ रिकवर हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे हम लोग. तो क्या प्रॉपर प्रिकॉशन है वो आपको नेक्स्ट सेशन में गरिमा बताएंगी. बट 80% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं. उसमें जो बचे 20%, उसमें से 17 मेडिकेशन के साथ, अच्छे ट्रीटमेंट के साथ एकदम ठीक हो जाते हैं, और 3 लोगों की डेथ होती है सिर्फ. तो मतलब एक्चुअली जो परसेंट है, राइट आंसर इज 97%. ओके, तो अभी जो 97% ठीक हो जाते हैं, तो जो 3% बचे जिनकी डेथ हुई, उसमें से 86% लोग जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ऐसी जो पहले से बीमारियां है उसका शिकार होते हैं ये लोग. तो यहाँ पे जो सेकंड सवाल हमारा जो था, तो यही था कि एक्चुअली कि कौन लोग ज्यादा रिस्क पे हैं, किनको हाई रिस्क है कोरोना वायरस होने का, कोविड-19 होने का. तो जो क्रॉनिक पेशेंट्स है, हाई बीपी और शुगर के, उनको सबसे ज्यादा चांस है. कई सारे लोगों को लगता है कि बच्चे भी हाई रिस्क पे हैं, वो रिस्क पे हैं, उनको होने का चांस है. इसलिए सारा जो डर होता है, आधे से ज्यादा डर तो इसी बात का होता है कि हमारे बच्चों को हो जाएगा. बट बच्चे काफी कम रिस्क पे है, बट वो ट्रांसमिटर हो सकते हैं, तो उनको नहीं होगा. बट उनकी वजह से आपके घर में जो एडल्ट अबव 60 लोग हैं, या जिनको पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी है, उनको होने का चांस है. तो इसलिए बच्चों को भी केयर करना जरूरी है. और सबसे जरूरी चीज है, जो एजेड लोग हैं
उनकी सबसे ज्यादा केयर करना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ कि केयर करने में क्या चीजें आती है, अगर पहले से आपको कोई बीमारी है तो एक तो आपकी मेडिकेशन जो है वो अच्छे से चालू रखना। इसमें एक जरूरी चीज है कि काफी मैं भी इतने सारे बीएमसी पेशेंट्स के साथ काम कर रही हूँ, तो अभी क्रॉनिक पेशेंट्स को लगता है कि हाँ, एक बार दिन में 2 बार बोला है दिन में लेने की मेडिसिन, एक बार में ली है ना ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जितनी क्वांटिटी और जितनी बार बोला है क्रॉनिक मेडिसिन लेने के लिए तो वो लेना बहुत जरूरी है, तभी उस पे इफेक्ट हो पाएगा, नहीं तो इफेक्ट नहीं होता। ये एक जरूरी चीज ध्यान रखने वाली होती है। और इसकी एक्चुअली मेडिकल केयर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर आपको कोई सिम्टम दिखता है कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी का, तो हमें थोड़ा अलर्ट होना जरूरी है। तो हम देखेंगे कि ये सिम्टम्स इसके क्या क्या है। तो जैसे हमने शुरू में आई डोंट नो मैंने मिस किया बोलना, बट ये कोविड-19 एक फ्लू की तरह ही बीमारी है। जैसे अलग अलग तरीके के फ्लू हैं, उसी प्रकार की बीमारी है। बट जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जो वायरल फ्लू है, वो नॉर्मल सर्दी खांसी और ये वाली ये वाला जो फीवर है या सर्दी खांसी है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें जो खांसी होगी वो ड्राई खांसी होगी, खांसी से आपके बलगम नहीं निकलेगा और ब्रीदिंग शॉर्ट पड़ेगी, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी और फीवर होगा जो ज्यादा हो सकता है। तो इसमें फीवर भी, आप अगर किसी को फीवर लगता है तो इसमें ध्यान रखो कि आप जब चेक कर रहे हो फीवर, कोई भी थर्मामीटर से हो सकता है, आप अगर फीवर चेक कर रहे हो तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जा रहा है, 38.0 से लेके आगे कितना भी, तो ये आपको फीवर चेक करवाना होगा जाके। और मतलब इसको अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो ये है 100.4। तो इससे अगर आपका ऊपर जा रहा है या इतना है तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। ये सिम्टम्स हैं। और एक जो सिम्टम दिखता है वो है वीकनेस, जनरल वीकनेस। तो पैर लिम्स में, आपके पैर में और हाथ में ज्यादा वीकनेस होता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 डिसीज। अगर अभी ये भी हो सकता है कि इसमें से कोई एक सिम्टम दिखे, सारे सिम्टम दिखे, या कोई भी सिम्टम ना दिखे, ये भी हो सकता है। तो अगर फिर सोचेंगे कि अगर सिम्टम नहीं दिख रहा तो कैसे पता चलेगा, तो आई डोंट नो रियली उसमें क्या कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ आपकी बॉडी आपको सिग्नल जरूर देगी। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अनवेल लग रहा है तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी और आपको तब तुरंत मेडिकल केयर लेना जरूरी है। और आइसोलेशन इज बेस्ट इफ यू आर फीलिंग अनवेल, सो ये याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपके घर में अगर किसी को थोड़ा सा भी अनवेल लग रहा है, फीवर है और सिम्टम कुछ भी दिख रहे हैं, तो घर के सारे लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। उसको सिर्फ उसको पहनाया, हमने नहीं पहना तो भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। याद रखिए कि कोरोना से प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जब आमने सामने आने वाले दोनों लोग, सारे लोग वो मास्क पहने, तभी प्रोटेक्शन 100% या ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगी। वी कांट से 100%, बट इट कैन बी मैक्सिमम अगर आप दोनों या सारे लोग मास्क पहन रहे हैं। और एक जरूरी चीज है कि इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज को। अगर आपके घर में एजेड पेशेंट है, उनको कुछ तकलीफ है, वो मेडिकेशन नहीं ले रहे, किसी को भी सिम्टम है, फीवर है या जो भी प्रॉब्लम है, इग्नोर ना करें, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेडिकल केयर की जरूरत है और कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो स्वस्थ के सारे दवाखाने एक्चुअली चालू है और वहां पे आपको टेली कंसल्टेशन की सर्विस भी मिल रही है। तो अगर एग्जैक्टली तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो स्वस्थ इंडिया मेडिकल सेंटर, जो स्वस्थ फाउंडेशन चलाते हैं,
तो हमारे तरफ से मिल रही है सारे क्रॉनिक पेशेंट को। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो है फ्री सलाह, फ्री दवा और फ्री लैब टेस्ट। जो फ्री दवा जो है तो बीपी, शुगर, थायराइड के पेशेंट के लिए 1 महीने की दवा हम फ्री में दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि दवाई ऐसी चीज है लोग जिसको एसेंशियल नहीं समझेंगे और वो फर्स्ट चीज है जो छोड़ देंगे। तो इसके लिए पैसे या अवेलेबिलिटी कारण ना बने दवाई छोड़ने के लिए, इसलिए हमने ये रखा है। और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी फ्री ही रखा है। और जो जरूरी टेस्ट है जो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ बीपी एंड शुगर, फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ बीपी एंड शुगर, तो वो सारे टेस्ट भी आपके फ्री हो जाएंगे। और बाकी सबके लिए जो क्रॉनिक पेशेंट्स नहीं है उनके लिए डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री रखा है और 25% डिस्काउंट है अदर मेडिसिन और लैब टेस्ट पे। तो अगर किसी को भी कोई भी सर्विस लेनी है तो ये सारे हमारे क्लिनिक के एड्रेसेस हैं, फोन नंबर्स हैं। आपको एक्चुअली इस सेशन के एंड में एक ऐप भी डाउनलोड करवाया जाएगा जिसमें आप सारे दवाखाने के एड्रेस और फोन नंबर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप अपने जो पास में है जो क्लिनिक उस पे जा सकते हो। ये आगे जो है गरिमा वो टेली कंसल्टेशन का नंबर है, तो ये भी इस पे भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आई नो आप में से काफी लोग पूना से हैं, तो वहां जहाँ हमारी क्लिनिक्स नहीं है इसलिए ये नंबर है जो ये रीचेबल है, मॉर्निंग से इवनिंग तक अवेलेबल है। डॉक्टर फोन पे अवेलेबल रहेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे एंड देन आप नियरेस्ट केमिस्ट से भी आप उसे ले सकते हैं। yes. तो ये पूरा सिर्फ मेडिकल केयर के बारे में था। तो क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या केयर हमें करनी चाहिए। तो आप कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। सोमनाथ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। सोमनाथ के पहले तौकीर ने भी क्वेश्चन पूछा है अबाउट मोर्टेलिटी रेट। ओके ओके यस। तो तौकीर एक्चुअली यस मैंने जो बताया ना कि 3%, 3.3 मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें से अगर 3.3% अगर हम देखें कि इतने सारी डेथ्स हुई है उसमें से 86% जो पेशेंट थे वो बीपी और डायबिटीज के पेशेंट थे। बीपी यहाँ पूरी लिस्ट लिखिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अस्थमा, किडनी। यस। तो किडनी की बीमारी सबको क्लियर है क्या क्या हो सकती है। तो मैं बता ही देती हूँ। तो किडनी की बीमारी हो सकती है कि जिसको किडनी स्टोन है या जिनका किडनी फेलियर है, ऐसे लोगों के लिए ये खतरा है, ये खतरा हो सकता है। आई थिंक इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है, इसलिए जो माधुरी मेडिकल केयर की भी बात कर रही है वो ये है कि यस खतरा है, खतरा काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर पीपल, बट अगर ये पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखते हैं जो मेडिसिन से पॉसिबल है तो वो खतरा देन एक्चुअली एज अ नॉर्मल जो बाकी सबके लिए रहता है तो वो खतरा पूरा जा भी सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि यस हाई रिस्क पे है बट एक्शन हमारे हाथ में है। ओके तो सोमनाथ का सवाल है कि माय फादर इज अ कॉस्मेटिक बिजनेस पर्सन, ही ट्रैवल्स ऑल ओवर पुणे सिटी, हाउ कैन वी टेक केयर फ्रॉम द वायरस। ओके यस। सो सोमनाथ, हाउ ओल्ड योर फादर इज। ओके सो अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो एक तो जो सारे प्रिकॉशंस हमने बताए कि जैसे मास्क 44, ओके, एंड इज ही अ पेशेंट ऑफ बीपी, डायबिटीज और एनी क्रॉनिक डिसीज। ओके तो सबसे पहले प्रिकॉशंस तो जो सबको लेने हैं वो तो उनको लेने ही होंगे, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन रखना, हैंड वॉश करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। अब जब भी वेंडर से वो मिल रहे होंगे तो उनके साथ
फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। अगर मीटिंग्स है, हो सके आप उनको हेल्प करके जूम मीटिंग्स करवा दो। अगर मीटिंग्स उनको करने पड़ रहे हैं तो जूम मीटिंग इज द ऑप्शन, या कोई भी वीडियो कॉलिंग। ओके, और सॉरी मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो ये ऑप्शन है। और अगर उनके पास सामान आ रहा है तो हम भी वेयर हाउस चलाते हैं, तो हम ये प्रिकॉशन बहुत अच्छे से लेते हैं कि जब भी बाहर से कोई सामान आ रहा है और उसको आप अगर अनपैक कर रहे हो तो वो दिन के एंड में करें, ताकि दिन के एंड में आप जाके घर पे तुरंत नहाओ उसको अनपैक करने के बाद, और जो कार्टन्स वगैरह है वो तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये एक बड़ी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो, अगर वो बिजनेस में है। एक्चुअली ही टेक्स ऑर्डर फ्रॉम ब्यूटी पार्लर। ओके ओके, हाँ, तो ऐसा अगर कोई गुड है जो बाहर से आ रहा है, कार्टन्स है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि वो दिन के एंड में अनपैक करे उसको और तुरंत जाके नहाए। और अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो इंश्योर करें कि उनके सारे पैरामीटर्स एकदम अच्छे से रहें, जैसे बीपी शुगर अगर है तो वो ठीक से रहें पैरामीटर्स। और एक चीज है जो इम्यूनिटी उनकी अच्छे से बिल्ड करना, वो गरिमा नेक्स्ट सेशन में बताने वाली है कि इम्यूनिटी उनकी कैसे बढ़ाए। माधुरी, एक और क्वेश्चन आया है मुझे प्राइवेट चैट पे। उसने पूछा है कि वेट कफ अगर किसी को होता है तो वो भी एक सिम्टम है क्या? क्योंकि इनिशियली हमें बताया गया था कि ड्राई कफ इज अ सिम्टम ऑफ कोरोना, तो इज वेट कफ आल्सो अ सिम्टम ऑफ कोरोना? वेट कफ अभी सिम्टम्स में जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें वेट कफ है नहीं सिम्टम में, और जितने भी है कोरोना पेशेंट्स उनको फर्स्ट सिम्टम जो है वो ड्राई कफ ही है, और सबसे बड़ा ब्रीदिंग में तकलीफ और वीकनेस, ये दो सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वो ध्यान देना जरूरी है कि आपको और वीकनेस नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि हमने बोला है कि ड्रॉपलेट्स या तो म्यूकस से स्प्रेड होता है, तो आई थिंक ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वेट कफ भी कोरोना का सिम्टम है क्या? सो आई थिंक दैट इज वेयर द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम। वेट कफ नहीं है कोरोना का सिम्टम, बट हाँ साथ में वो चीजें देखना भी जरूरी है कि फीवर है या नहीं, वीकनेस है या नहीं। तो हो सकता है कि बाकी के सिम्टम्स है और वेट कफ है, तो उसमें इग्नोर ना करें, सारी प्रिकॉशन साथ में ले ही, जैसे मास्क पहनना और तुरंत डॉक्टर को दिखाना। मतलब ये नहीं करना कि मेरा कोरोना का टेस्ट कर दो, ये बात सही नहीं है। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं, और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, तो वो हम उन पे छोड़ सकते हैं। पैनिक ना क्रिएट करना या खुद पैनिक ना होना, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक उसमें ये भी रिकॉग्नाइज करना कि इवन ऑल जो पूरी रिसर्च चल रही है अबाउट कोरोना, क्योंकि वो इतना नया है, वो रिसर्च भी बहुत नई है, एंड रोज ऑलमोस्ट नई इंफॉर्मेशन आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल एक नया सिम्टम जो काफी पता चल रहा है दैट कई बार स्मेल का जो सेंस है उसका लॉस हो जाता है। सो एंड आप में से कई लोगों ने ये भी रिकॉग्नाइज किया, आपको पता है कि ये जो वायरस है वो भी म्यूटेट होता है। सो इसकी सिम्टम्स जो है वो शायद समय समय के साथ बदलते रहे, जब तक हमें पता चले तब तक वो वायरस आगे भी म्यूटेट कर चुके। तो जो जनरल आई थिंक जो मी द की टेकअवे जो माधुरी बोल रही है कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो ऑल्सो जस्ट टेकिंग लाइक मेडिकल केयर, सीकिंग मेडिकल केयर, खुद से उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करना। यस, तौकीर ने एक सवाल पूछा है कि कैन असिम्प्टोमेटिक पेशेंट ट्रांसफर द कोरोना वायरस? यस यस, एक्चुअली फैल सकता है। और वो जैसे हमने बोला कि नॉर्मल पर्सन, उसको कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, उसको कोरोना वायरस कोविड-19 बीमारी होगी भी नहीं, बट वो ट्रांसमिटर बन सकता है। तो इसलिए जो मैंने बोला ना कि ये एज्यूम करके चलो कि मुझे इसमें सिम्टम दिखाई देंगे तो मैं अपनी केयर करूंगा, या मुझ में सिम्टम दिखाई देंगे तो ही मैं केयर करूंगा, ये अपने दिमाग से निकाल ही देना है।
ये समझ के चलो कि आपके आसपास ऐसे सारे पेशेंट्स कोविड के ही है, सारी जगह पे कोरोना वायरस है ही, ये जितना एज्यूम करके चलोगे उतना उतना फायदा होगा। तो अभी और गवर्नमेंट ने बोल दिया वी हैव टू लर्न टू लिव विथ इट, तो है ही, अपने आसपास सब जगह पे है और कोई भी फैला सकता है इसे। Ganesh, do you want to speak? You have raised your hand. You can unmute and speak, please. Yes, Priyanka. Priyanka just asked. Yeah. The taste of, yes, loss of taste buds and loss of smell. So Garima mentioned that. Yes. These are also the symptoms. Okay. I think we can move on to the next segment. So थोड़ा इम्यूनिटी की बात करते हैं, and the power of immunity is that हम जैसे कह रहे हैं कि कोरोना अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, वो अपने आप को बदल रहा है, हम कैसे बदले। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जस्ट लाइक उसमें एबिलिटी है खुद को बदलने की, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर में भी वो एबिलिटी है जिसको हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं, राइट, कि वो नए खतरों से, नए स्ट्रेसर्स से एक्चुअली कैसे लड़ सके। एक वायरस तो बोले तो इतनी छोटी सी चीज है कि हमें दिखेगी भी नहीं, इतनी छोटी सी चीज है। तो हम सोचे हमारे पास इतना बड़ा बॉडी है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंस है व्हिच इज कॉल्ड इम्यूनिटी, एंड वो हम लोग को ऐसे में बहुत बहुत हेल्प कर सकती है। इनफैक्ट वही रीजन है जो आपने देखा 100 में से 80 केसेस जो है जो खुद से रिकवर हो जाते हैं, वो कौन रिकवर करवा रहा है? वो एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी है जो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के खुद से रिकवर करने में हेल्प करती है। एंड हमारी इम्यूनिटी के आई थिंक कई और एग्जांपल्स हमने रियल लाइफ में देखे होंगे। अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर थोड़ी ना आपके बोन्स को आके स्टिच करते हैं, वो सिर्फ एक फ्रैक्चर, एक कास्ट लगाते हैं जिसमें बॉडी को एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक हीलिंग एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो अपना काम कैसे कर सके। अगर आपकी स्किन पे कोई कट आ जाता है तो देन अगेन वो बॉडी अपने आप को हील करती है। तो बॉडी में वो एबिलिटी है खुद को हील करने की। ऑल दैट वी नीड टू नो इज, जैसे कट हुआ तो हमें पता है पानी नहीं डालना, ये प्रिकॉशंस लेने हैं, या फ्रैक्चर हुआ है तो कास्ट लगाना है। इस केस में हमें अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर अगर फोकस करें तो माधुरी ने से बोला एक फोकस ये है, हमेशा अज्यूम करके रहे कि मेरे पास जो भी है आसपास वो कोरोना इन्फेक्टेड है, वही मेंटली अज्यूम करके रहे, इसलिए प्रिकॉशन लें। और दूसरी चीज ये अज्यूम करें कि मेरी बॉडी के पास इम्यूनिटी है और मुझे उसको बढ़ाना है, कि अगर ऐसा होता भी है फॉर एनी रीजन, मेरी जो भी प्रिकॉशंस के बावजूद इफ इट एंटर्स माय बॉडी, तो मैं खुद अपना ध्यान कैसे रखूं। तो इसके लिए एक्चुअली 4 वेरी सिंपल टूल्स आर देयर। 4 बहुत बहुत सिंपल टूल्स हैं। इनफैक्ट अभी जो मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगी शायद वो आपको इतनी सिंपल लग सकती हैं, इतनी ऑब्वियस लग सकती है कि लगेगा अरे इससे क्या होगा, पूरी दुनिया इससे मरी जा रही है। बट we have seen this in the last 3 years, high blood pressure, diabetes, thyroid, cholesterol, इन सब के पेशेंट्स के साथ हम लोग ने बहुत काम किया है। एंड अगर आप अपने फूड यानी आपके आहार, आपकी एक्सरसाइज यानी आपका व्यायाम, रिलैक्सेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एंड फाइनली अपने मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग का अगर आप ध्यान रखें, these 4 things can not only protect you from coronavirus, they can also be opportunities कि जो अगर हाई बीपी, डायबिटीज, ये सब चीजें हैं उसको भी रिवर्स कैसे कर सके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आहार के साथ। सो व्हाई इज फूड इम्पोर्टेंट? आहार के ऊपर इतना सिग्निफिकेंस क्यों दिया जाता है? बिकॉज फूड इज द मटेरियल ऑफ विच वी आर मेड। फूड इज द मटेरियल, हमारी पूरी बॉडी उससे बनी है। तो अगर मैं रिकमेंडेशंस को बहुत सिंपली 2 चीजों में, 2 वर्ड्स में अगर मैं समराइज 2 सेंटेंसेस में करूंगी, वो ये है जो काफी ऑब्वियस लगेंगे शायद, खाना खाएं एंड किचन को दवा खाना बनाएं। सो खाना खाएं तो आई एम गेसिंग लोगों को लग रहा होगा व्हाट डज दिस मीन, मतलब ऑब्वियसली सब लोग खाना खाते हैं।
इसमें नई बात क्या है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द थिंग इज दैट आज के दिन में हम बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जो कहने को खाना है बिकॉज वो एडिबल है, हम खा सकते हैं, हमें टेस्टी लगते हैं, बट एक्चुअली उसमें कोई भी क्वालिटीज नहीं है जो एक प्रॉपर फूड में होनी चाहिए। वो सिंथेटिक है, मैन्युफैक्चर्ड है, चाहे वो आपका पैकेज फूड हो, प्रोसेस फूड हो, कई सारी चीजें हैं। सो फूड को चेंज करना, जैसे कोरोना वायरस है उसका मटेरियल है एक बना हुआ है, तो अगर हमारे जीन्स को भी अडेप्ट करना है, हमारी बॉडी को भी अडेप्ट करना है, तो उसका मटेरियल बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो फूड में आपको क्या चेंजेस करने चाहिए उसकी रिकमेंडेशन ये है। दीज आर 4 थिंग्स दैट वी सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली कि आप इसको अपने, एक्चुअली शुगर हटाएं। शुगर इज नोन, इट इज प्रूवन कि आधे घंटे में चीनी खाने के बाद, इवन अगर आपने 1 चम्मच चीज लिया, विद इन हाफ एन आवर वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अगर आप एक कोक का कैन पीते हैं तो अगले 72 आवर्स तक, यानी 3 डेज तक आपकी इम्यूनिटी सप्रेस रहती है। तो शुगर इज अ बिग बिग नो। सेकेंड, पैकेज फूड। आउटसाइड फूड तो आजकल काफी कम हो ही गया, बट स्टिल पैकेज फूड हमें खाने की आदत है, तो वो ना खाएं। एक्सोटिक फूड्स इज नॉट समथिंग जो आपको हार्म करेगा। सो व्हेन आई से एक्सोटिक फूड, आप याद करेंगे अगर कुछ जॉन्डिस होता है तो लोग बोलते हैं अच्छा ये स्पेशल चीज खाओ, राइट। ऐसे ऐसे फूड्स जो बहुत महंगे होते हैं, हम लोग कई बार कोशिश करते हैं चलो ब्रोकली, एवोकाडो, ये सब फ्रूट्स की फूड्स खाएं, बट हमें एक्चुअली इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। एक और फोर्थ फूड जो अगेन बहुत बहुत हार्मफुल है इम्यूनिटी के लिए, वो है कैफीन। एंड कैफीन हमें पता होगा इज प्रेजेंट इन कॉफी, ऑल्सो इन टी। ज्यादातर कैफीन को केवल कॉफी के साथ एसोसिएट करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन टी ऑल्सो एंड कोल्ड ड्रिंक्स। So if you can keep these 4 things out of your system, your sugar, caffeine, packaged outside food, and not depend on exotic foods, तो भी काफी बहुत बहुत आपको उससे फर्क पड़ेगा। बट अभी शुगर नहीं खाएं तो मतलब मीठा कैसे खाएं, तो वो भी क्वेश्चन है। चीनी के बिना कैसे लाइफ चलेगी, राइट। सो इन सब चीजों के लिए, या इवन चाय नहीं पिए तो उसके लिए रिप्लेसमेंट्स हम सजेस्ट करते हैं। सो शुगर कैन बी रिप्लेस्ड विद जैगरी। इनफैक्ट फ्रूट्स भी खा सकते हैं, डेट्स भी खा सकते हैं, कई चीजें खा सकते हैं। तो आपको स्वीट खाना खाने से कोई मना नहीं कर रहा। एंड बाय द वे, इससे भी हाई बीपी उन सब के लिए नहीं, ये प्रिकॉशंस हैं हम जो सब ले सकते हैं। पैकेज फूड की जगह आप सब अभी घर का खाना खा ही रहे हैं। अगर उसमें एक रिकमेंडेशन है तो वो ये होगी कि एक्चुअली आप उससे रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी का ऑयल यूज करें। अगेन कच्ची घानी के ऑयल के अंदर बहुत प्रॉपर्टीज है। यूजुअली हम सोचते हैं कच्ची घानी का ऑयल यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यानी मस्टर्ड ऑयल, ऐसा नहीं है। आप शेंगदाना यानी पीनट का ऑयल भी कोल्ड प्रेस्ड आता है, कोकोनट का भी आता है, तिल यानी सेसमे का भी आता है। तो जो भी आप घर पे खाते हैं उसका तेल आप जस्ट बदल सकते हैं। एक्सोटिक फूड्स की हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल हर्ब्स फ्रॉम आवर किचन यूज कर सकते हैं। एंड कैफीन की जगह हम हर्बल टी यूज कर सकते हैं। एंड हर्बल टी की रेसिपी और उसका एक वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दीज हैव अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। एंड आई थिंक आपने शायद ये लिस्ट देखी होगी, बट आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे शेयर कर देते हैं। दीज आर गाइडलाइंस जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी दी है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाने में हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया का इस्तेमाल करें। हर्बल चाय बनानी है, दालचीनी डाल सकते हैं, सूखा अदरक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं, एंड गुड़ से मीठा करें। आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग, बट मैं क्लियर कर देती हूँ, इस चाय में दूध नहीं डालना है। सो टिपिकली चाय में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, दूध, पानी, एक्चुअली 4 होती है, दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी। तो आपको ये 4 में से 3 चीजें तो नहीं लेनी। अब बचा पानी, पानी में आपको हर्ब्स ऐड करने हैं एंड आपको गुड़ ऐड करना है। एक और चीज जो बहुत हेल्पफुल है, जैसे माधुरी ने मास्क के बारे में बताया, मास्क क्या करता है, आपके अंदर इंफेक्शन आने से वो प्रिवेंट करता है, वायरस को आने से प्रिवेंट करता है। इसी तरह एक और तरीका जो हमारे ट्रेडिशनली आयुर्वेद में बताया गया है, वो है तिल या नारियल के तेल से आप खुद अपनी बॉडी के अंदर एक मास्क जैसी एक लेयर बना सकते हैं अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। तो कहाँ है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स? अपनी नोज में। तो एवरी मॉर्निंग आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में तेल की 1 बूंद या 2 बूंद डालें एंड अपने मुंह में 1 चम्मच तेल से 2 to 3 मिनट्स
उससे कुला करें एंड उसे बाहर फेंक दें। तो आपके नोज एज वेल एज आपका जो ये थ्रोट है, सोमनाथ जैसे आप बोल रहे थे आपके फादर पूरे दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं, राइट, हम सबके लिए, तो हमारी बॉडी के अंदर एक इनविजिबल सी कवरिंग बन जाएगी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो हमें सेफ रखेगी। एंड इन सब फूड चेंजेस की अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं जाएगा, एक भी, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को रिप्लेस कर रहे हो, आप कोई भी नया फूड आप सिर्फ ऐड नहीं कर रहे, आप एक्चुअली हमेशा एक चीज हटा रहे हो और उसकी जगह एक नई चीज ऐड कर रहे हो। तो ये है फूड पे। तो खाना खाए यानी रियल फूड खाए, नॉट पैकेज फूड, एंड अपने किचन को दवा खाना यानी एक मेडिसिन स्टोर कैसे बनाए। ये है आपके व्यायाम के लिए। तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस आई थिंक वी ऑल नो, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है। बट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो क्यों जरूरी है, ऑल्सो बिकॉज हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, अगर आपने सुना हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो लिम्फेटिक हमारी ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, हमारे अंदर हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, बट हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो एक्चुअली सारी इंफेक्शन से फाइट करता है, उसके अंदर कोई पंप नहीं है। जो हमारा पंप कैसे है, हम जब अपनी बॉडी को मूव करते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम जॉग करते हैं, जब हम कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को मूव करना बहुत जरूरी है, सो दैट हमारे अंदर की एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर उसके साथ साथ मूव करें। तो इस सेशन के बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अगेन एक बहुत अच्छा वीडियो, बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, आप कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, किसी को कोई भी हेल्थ इशू है तो वो कर सकते हैं। एंड व्यायाम की आई थिंक की समरी इज अंदर एंड बाहर के ऑर्गन्स दोनों को एक्सरसाइज करना है। एंड आई नो हम सबको बाहर एक्सटर्नल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करना हम सबको पता है, बट हम इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करना कई बार भूल जाते हैं, that does not cross our mind. So what is one internal organ for you to exercise? वो है आपके lungs, because ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है वायरस, राइट? तो अपने लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, अगेन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो करके आप अपने एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सिंपल हैंड मसाज, सो अगर मेरा हैंड्स की फिंगर्स है, वी वुड हैव हर्ड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो लिटरली अगर अगेन इसके लिए एक वीडियो दूंगी, सिंपली अगर आप अपने हैंड्स को अच्छे से मसाज करें, तो इससे हैंड मसाज नहीं हो रही, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो है नॉट जस्ट ब्लड फ्लो बट लिम्फ वेसल्स का फ्लो जो है वो भी इंक्रीज होगा। एंड अगेन इसमें कोई बजट नहीं जाता, केवल टाइम थोड़ा सा देना है। So that is what we suggest for व्यायाम। एंड दो और रिकमेंडेशंस हैं, एक्चुअली मैं एक और लास्ट रिकमेंडेशन कंप्लीट करती हूँ एंड देन आई विल ओपन इट अप फॉर क्वेश्चन आंसर्स। थर्ड रिकमेंडेशन थी इसमें पे रिलैक्सेशन, राइट? एंड शायद आप सोचेंगे कि रिलैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बात की स्टिमुलेट करो, एक्सरसाइज करो, तो रिलैक्सेशन is actually equally important. तो एक एग्जांपल अगर लें, अगर एक रोड पे रिपेयर करना है, एक रोड को रिपेयर करना है, एंड वो रोड पे ट्रैफिक आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो आप उसे रिपेयर कैसे करेंगे? उसके लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा, तभी कुछ रिपेयर एक्टिविटीज हो सकती है। तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एक सिस्टम बना हुआ है रिपेयर का, एंड दैट इज स्लीप। तो स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही समय होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो भी डैमेज हुआ है, अगर थोड़े से भी वायरस से वो कांटेक्ट में आई है, थोड़ी भी डैमेज हुई है, तो बॉडी उसको एक्चुअली करेक्ट कर सकती है। तो एक ही रिकमेंडेशन है रिलैक्सेशन पे, जो समरी है वो ये है कि सही समय पर सोएं और सही समय के लिए रिलैक्स करें। तो इंपॉर्टेंट है सही टाइम पर एंड फॉर द राइट टाइम ऑल्सो। तो सही टाइम क्या है? सही टाइम है एटलीस्ट मिडनाइट से पहले, एटलीस्ट 12 बजे से पहले। तो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो यहाँ पे कितने लोग 12 बजे से पहले सोते हैं? कैन यू जस्ट गिव अ थम्स अप ऑन योर इन द रिएक्शन स्क्रीन अगर आप 12 o'clock से पहले सोते हो। ओके, अथर्व, रुचि, निमत, साजिदा, ओके, माया, अमान, देवरती, प्रियंका,
गणेश, ओके। एंड काफी सारे थम्स हैं जो या तो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हाउ टू यूज दिस ऑप्शन, या शायद 12 o'clock के बाद सोते हैं। इनफैक्ट हमने रिसेंटली एनालिसिस किया फेसबुक पे कि फेसबुक पे लोग यूजर्स कब एक्टिव हैं। तो फेसबुक के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी होती है 10 बजे से 3 बजे के बीच में रात को। सो वन ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ दिस लॉकडाउन हैज बीन कि हम लोग काफी लेट सो रहे हैं एंड ये बहुत बहुत हार्म कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम को। सो 12 o'clock तक सोना बहुत जरूरी है, टू गो विद द रिदम ऑफ द सन बहुत जरूरी है एंड सही क्वांटिटी में सोना। तो पूरे दिन सो के भी फायदा नहीं है, 8 घंटे 9 आवर्स तक मैक्सिमम आप सो सकते हैं, उससे ज्यादा भी लेथार्जी आएगी सिस्टम में, और 6 घंटे से कम सोएंगे तो उससे भी आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। सो एक है सोना एंड द सेकंड इज रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द डे, स्पेशली इस समय गर्मी के मौसम में जहां हमारे अंदर इतना मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, दिन में भी थोड़ा रिलैक्स करना बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड है। सो these are the three I think key topics on आहार, व्यायाम, relaxation. अभी माधुरी इमोशनल वेलबींग की बात करेगी, बट आई जस्ट वांट टू पॉज हियर एंड इनवाइट अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स पे। Garima, there's a question asked on private chat. Yeah. Does eating non-veg cause any trouble to the immunity? Should anyone avoid having non-veg at this point in time? राइट। सो आई थिंक इसके ऊपर एक थोड़ा दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक पहले जो थोड़ा मिथ चला था, लोगों को लग रहा था बिकॉज ये वेट मार्केट से आया है वायरस, तो लोगों को लग रहा था कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाएंगे तो हमें भी उससे वायरस आएगा। तो आई थिंक वो एक मिथ है। इन दैट सेंस नॉन वेजिटेरियन फूड इज लाइक एनी अदर फूड, चाहे वो एग है, चिकन है, अगर उसको उसकी सरफेस इन्फेक्ट हुए तो चाहे वो फ्रूट वेजिटेबल हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा when it comes to directly कोरोना वायरस आना। बट जो सेकंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसके ऊपर लास्ट आई थिंक 20 इयर्स में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, कि आज के दिन में जो हम एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इट्स नॉट जस्ट आपका मीट एंड एग्स, बट ऑल्सो जो हम जो मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो बहुत उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज आज के दिन में उसमें बहुत हार्मोन्स डाले जाते हैं, बहुत इंजेक्शंस, बहुत एंटीबायोटिक्स डाले जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी, आपके सिस्टम को पूरा वीक कर देते हैं। एंड हम लोग वेलनेस के काम में, फील्ड में काम करते हैं, तो हम लोग लास्ट 3 इयर्स से काम कर रहे हैं। हमने बहुत केसेस ऑफ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको रिवर्स किया है। यानी आज के दिन वो पेशेंट 0 मेडिसिन पे, और उसमें करने का एक बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है कि एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली स्टॉप कर देना, या वीक में एक बार से ज्यादा नहीं खाना। सो 2 एस्पेक्ट्स, वायरस से कुछ लेना देना नहीं है, बट बिकॉज इनके अंदर, मैं अडल्ट्रेशन की भी नहीं बात कर रही कि इम्प्योर है वो सब क्या है, बट जस्ट हार्मोन्स जो इतने डाले गए हैं, उससे बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। Yes, Somnath is saying during lockdown unable to sleep. I can totally understand and अभी माधुरी थोड़ी बात करेगी उसके ऊपर, because that is because of mental and emotional well-being, right? हमारे thoughts कितने चल रहे होते हैं उसके अंदर, so माधुरी will talk about that. So actually immunity की बात करी हमने, और जैसे हम अभी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको कई सारी जगह से, कई सारी यूनिवर्सिटीज से, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सारी यूनिवर्सिटीज से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जो जिससे काफी डर पैदा होता है, काफी पैनिक पैदा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ये जो पूरी कोरोना वायरस की सिचुएशन है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर डर को कम करना। तो 2 चीजें होती है कि एक होता है डर से एक्शन लेना, और दूसरा होता है कि केयर के साथ केयरफुली एक्शन लेना। तो अगर हम डर के साथ एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं पे गलती होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये ट्रस्ट रखो अपने पे कि हाँ, मैं खुद की केयर कर रहा हूँ, सावधानी बरतनी है वो बरत रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। कोरोना से डरो ना जो बोलते हैं, तो डरना ना डरने का मतलब नहीं कि बस बिंदास जाओ कम्युनिटी में और बोलो कि मुझे कुछ नहीं होगा, वो होगा ओवर कॉन्फिडेंस, तो उससे नुकसान होगा।
लेकिन अगर आप अपनी केयर कर रहे हो, जैसे इतनी सारी प्रिकॉशंस बताए, इम्यूनिटी बढ़ाने के मेजर्स बताए, तो वो सारे कर रहे हो तो काफी डर कम होगा। दूसरी एक जो चीज होती है, इस डर से और इस पैनिक से डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अगर एंग्शियस हो किसी चीज के बारे में तो इम्यूनिटी कम होती है। तो उसको एक्चुअली साइको एंडो न्यूरो इम्यूनोलॉजी के अगर आप उसमें पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं उसमें चली जाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा कि कैसे इम्यूनिटी वीक होती है डर से, वो समझाने के लिए। बट इतना समझ लीजिए कि डर से इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए 2-3 चीजें हैं जो आपको डर कम करने के लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहले कि आप कुछ तो एक चीज रखो, अपने पे विश्वास रखो, कि फेथ रखो कि मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। वो एक ट्रस्ट रखो, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। और ये डर, सैडनेस जो भी है, उससे निकल के अगर हम ट्रस्ट और जॉय की तरफ जाते हैं तो इससे काफी हमारी इम्यूनिटी बनेगी, हम इससे दूर रहेंगे। और काफी सारे लोग हैं जो इस क्राइसिस में भी काम कर रहे हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा, तो ये बहुत जरूरी है। और जॉय की जो मैंने बात करी इसके लिए एक छोटा सा सजेशन है। सजेशन सुन के ऐसा लगेगा कि ये कैसा सजेशन है, बट ये बहुत पावरफुल है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। ये है कि 5 मिनट दिन के अपने लिए निकालो, जो भी आपको करना पसंद है चीज, जिससे आपको रियल आनंद मिलता है। टीवी देखना नहीं, टीवी आप कितने भी घंटे देख सकते हो, उससे कुछ आनंद नहीं मिलेगा, बस टाइम पास होगा। तो कुछ भी ऐसी चीज जो आपको अंदर से जॉय देती है, खुशी देती है, उसको 5 मिनट करिए, वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। और डर से बचने का और एक रास्ता ये है कि जितनी सारी यूनिवर्सिटीज आपको इंफॉर्मेशन दे रही है वो कम करें पढ़ना। जो ऑथेंटिक है कुछ सिलेक्ट करो अपने लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जहां से मिलती है वही इंफॉर्मेशन पढ़िए और बाकी को जस्ट इग्नोर करें, तो वो काफी आपको डर कम करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक, थैंक यू। तो आप अपनी 5 मिनट वाली एक्टिविटी जो भी आपके दिमाग में आई है, मन में आई है, वो उसको चैट बॉक्स पे डाल सकते हो आराम से। गरिमा? या तब तक आप सबके लिए आई एम आल्सो शेयरिंग अब तक की समरी, राइट? इफ वेरी सिंपल वर्ड्स में, इफ यू कैन रिमेंबर, खाना खाना है, किचन को दवा खाना बनाना है, अंदर एंड बाहर दोनों का व्यायाम करना है, राइट? एक्सटर्नल ऑर्गन्स का भी करना है, इंटरनल यानी अपने लंग्स का करना है, एंड अपना मसाज करके अपने इंटरनल ऑर्गन्स को करना है। ऑयल की कोई जरूरत नहीं है, कुछ इलैबोरेट नहीं करना। सही समय पर और सही समय के लिए रिलैक्स करना है, मीन्स सोना सही टाइम पे है, सही नंबर ऑफ आवर्स के लिए, एंड दिन में भी रिलैक्स करना है। एंड फियर एंड सैडनेस से ट्रस्ट एंड जॉय की तरफ बढ़ना है। सो अगेन अवॉइड all the other universities जिसकी माधुरी बात कर रही है, and take out this time for yourself. I know this is not what we wanted, ये जो हो रहा है, but this is also an opportunity कि अब जब ये है इस समय सिचुएशन में, how can I make the best of it? आज तक फैमिली के साथ हमें टाइम ही नहीं मिला। very soon you know, I don't know, like we all don't know where life takes us, तो हमें इतना टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ, how can we really make this a joyful time? And yeah, Madhuri needs to. So, thank you. Thank you, Madhuri. Thank you so much, Madhuri. It was so great to have you with us. Thank you, Dimple. Bye bye. Amazing insight. Yeah, bye. So I'll just take a minute just to share some resources. We have, I think today we were like, एक तरह से ना एक कैप्सूल बनाने की हमने कोशिश की है, एक कैप्सूल में कितना कुछ डाल सकते हैं।
If you want more information, we have also started this Facebook page. It has health information on all of these things, also in Hindi language. So you can like this Facebook page. We've posted a lot of videos on YouTube. There is a Telegram channel जो आप join कर सकते हैं. And in सबका purpose यही है कि not just हम सब अपने लिए, but again अपने communities, friends को कैसे बोले कि थोड़ा positive and immunity building action की तरफ बढ़े. Because coronavirus, whether we accept it or not, unless some miracle happens, ये reality होने वाली है for the next 12 to 18 months. And one more source of information that could help you, that I will share here, is this, which is a mobile app. So if you see the symbol, आप ये symbol, if you go to Play Store and type in SimC, like आपका SIM होता है तो SimC और या स्वस्थ इंडिया अगर आप टाइप करें, so this mobile app will come in, जहाँ पे आपको एक जगह all our clinics, their phone numbers, उनके timings, उनके everything you will get, teleconsultation number, there is a 24-hour helpline, again anyone in India can access that, and all this health information जो हम कह रहे हैं वो भी हम उसके ऊपर post करते हैं. We do not collect any data from users, so you can be assured about your privacy. But ये भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगी. Yeah, so I'm just going to pause here and leave the space open. Does anyone else have any final questions, thoughts? Please use this platform. We'll try to do more sessions like these, but immediate questions on your mind, please feel free to ask them right now. Swasth Foundation also has a page on Instagram and Facebook. Please follow them. There is amazing resources available on Facebook. Garima is also going to share some resources with me, which I'll circulate with you all. All their clinic information and presentations have been shared on WhatsApp, especially in Mumbai. But for Pune, you guys can use the tele-calling number, and we will circulate that again with you all. Sameer has asked a question. Yeah, Sameer, that's a good question. देखा जाए, it is solving like a symptom. It is not the cure, जैसे बोलते हैं. It will only solve it temporarily. And the idea is कि of the lockdown is that at least through this process, पूरे system को gear up होने के लिए कैसे time मिले, कैसे chance मिले कि वो actually इस load को handle कर सके. One of the most saddening things that's happening, and so many videos are circulating कि इस समय hospitals में capacity ही नहीं है. And not just coronavirus patients, but people who have other health needs, उनको भी नहीं मिल पा रही है कोई treatment. So lockdown is to prevent that excessive, जो माधुरी ने graph दिखाया था, जो एकदम rise होता है, उसको stop करने के लिए है, till the government can figure out solution, till a vaccine can come, and also till we can figure out as a human race that हमें शायद अपने lifestyle में कुछ changes करने होंगे. आज के दिन हम सब अपनी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया. आजकल सबको पता है, आप सब में से सबको पता था कि डायबिटीज, बीपी, इन सबको कंट्रोल में रखना जरूरी है. बट ये चीज हमें पहले से भी पता हो सकती थी क्योंकि ये सब बीमारियां तो कब से पहले से हैं. तो ये रियली एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब अपने लाइफस्टाइल में सोचें क्या चेंजेस करने हैं जिससे चाहे कोरोना हो, सार्स हो, मर्स हो, कोई भी अलग अलग बीमारियां हो. Because that is what all the leading experts are saying, कि इस type की infectious issues will keep coming in such a connected world. So can we be better prepared for that? And the only solution, the only vaccine that is truly effective, I believe, is our immune system. It is taking care of 97 out of 100 cases. So what better a vaccine to look for? Thank you so much, Garima. This has been amazing. I think we knew it would be a good presentation, but I think it's been
so much learning for all of us. I think we've all been just following what's been happening on TV and we're aware of so much. But I think you've taken a level deeper and helped us just think about what we can do at home. And I think it's so reassuring to hear that. So thank you. I wish we had had more alumni join. I think many more had signed up but were unable to join. I know that the social work team is going to reach out to you for another session. I'm going to request them to open it up again for alumni, just in case there are more kids who, you know, decide to come and join that. So if there are no further questions from anybody, should we close this session then, Garima? Sure. It's been a pleasure. Yeah. I'm happy to do more sessions like this, I think. Yeah, so I think we'll just get more alumni. So for all of you who said you would love, you know, can we do another session? If you want to join in once more, maybe involve your family in it, because I think it's such a critical session for your parents and your siblings to hear. So maybe when the social workers do this the next time with Garima and Madhuri, we can get some of the alum to join us. So just want to say thank you. We're going to rely a lot on the services that you're providing in Bombay, and we're going to get the Pune kids to connect over the phone as well. Garima, thank you. Please thank Madhuri on our behalf as well. I will do that. Thank you. Thank you for giving Thank us the opportunity also. This is No, all our pleasure. We need it. Thanks. Thank you And all for joining. luckily this is Garima. recorded. Thank you. The session is recorded, so it's going to help. Oh, that's great. Yeah. I'll share the recording also soon. Okay. Sure. Super. That will be That's great. great. Okay, Thank you great. to all the alumni who joined. I'm so glad you did, and I hope it was helpful for you. Bye-bye. Have a great weekend, you all. Bye. 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 Thank you, Thank you Garima. all. See Thank you. you, Happy Garima, ma'am. weekend. Thank you, Bye-bye. Akansha team. Yeah, bye. Thank you so much.